तो कल हम डिस्कस कर रहे थे त्रिदोषा सिस्टम। और हमने पंचमहाभूत हाँ, पंचमहाभूत और बाकी वगैरह देखा था, राइट? यस। ऑलराइट। थैंक यू निकिता जी। हाँ, तो उसके बाद हमने देखा था दोषा। तो त्रिदोषा सिस्टम हम देख रहे थे गुणों के बाद, राइट? तो तीन गुण, उसके बाद तीन दोषा, त्रिदोषा। अम तो हमने कल ब्रीफली देखा था, व्हाट इज इट। सो हमने देखा था व्हाट इज त्रिदोषास, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। सो लेट्स गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट। ओके, राइट। सो the three doshas are traditionally correlated with three types of eliminatory products. Okay, मतलब we'll see. Vata is synonymous with wind, pitta with bile, kapha with phlegm. ठीक है, तो ये जो तीन दोषा है जो हमने देखा, वात, पित्त और कफ, इनको तीन प्रकार, जैसे तीन हमारे शरीर में तीन टाइप में देखा जाता है, तीन प्रकार के देखा जाता है। सो वात को विंड कहते हैं, मतलब प्राण, विंड, एयर, राइट? वो पित्त इज बाइल। बाइल इज produced in your organ, like different organs you have: heart, liver, kidneys. So bile is a uh, mm, uh, bile is a क्या बोलते हैं, liquid which is produced in your kidneys. Okay, sorry, not kidneys, liver, sorry. Okay, it's produced in your liver. Pitta, kapha is phlegm. phlegm, okay. kapha, जब आपको कोल्ड आता है, वो सर्दी होती है, तो यू हैव दैट म्यूकस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो येलो, वाइट या ब्लैक कलर में आता है, राइट? आपके नाक से या फिर आपके गले से आता है, दैट्स कॉल्ड phlegm. ओके, सो कफा। सो वाता इज इन अ फॉर्म ऑफ विंड। प्राण मैंने इसलिए बोला था ताकि आपको श्वास, जैसे एयर, वो पता चले। वाता, इट्स मोर ऑफ अ विंड, इट्स नॉट लिक्विड फॉर्म में नहीं है। बाइल और फ्लेम जो है वो लिक्विड फॉर्म में है। नाउ, ऑल्दो द डिस्क्रिप्टर्स of wind, bile and phlegm do not describe the complete activities of the dosha, they provide a convenient way to understand the implications of the manifestation when in a disturbed state. तो ये जो तीन टर्म्स हमने देखे, विंड, बाइल, फ्लेम, इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ठीक है, मतलब जैसे मैंने बोला बाइल और फ्लेम वो प्रोड्यूस होता है आपके शरीर में। नाउ दिस इज नॉट एग्जैक्टली द प्रॉपर वे, मतलब टू अंडरस्टैंड, वो पूरा एक्सप्लेन नहीं करता कि ये वाता, पित्त, कफ क्या है, बट इट गिव्स यू अ फेयर आइडिया। ठीक है, मतलब एक डिसेंट आइडिया इट गिव्स यू। नाउ, vata promotes and regulates the activities of the mind, carrying the perception of sensory organs, that is jnanendriyas, to the effector organs, कर्मेंद्रिया, for a response. तो वाता जो है क्या रेगुलेट करता है, अपने इंफॉर्मेशन को ज्ञानेंद्रिय से कर्मेंद्रिय तक ले जाता है। ठीक है, एज द विंड और द flatus that expels the feces, vata also promotes the expulsion of the substance from the body. vata is also responsible for waste जो अपने शरीर से निकलता है, दैट इज फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ योर बॉडी, वॉट एवर वेस्ट इज एक्सपेल्ड, निकाला जाता है अपने शरीर से, vata is responsible for that, as well as ejaculation of semen and birthing of a baby. All of these four things are related to vata. Okay, the activity of vayu is present in conception. Okay, drawing the sperm and ovum together, guiding embryonic development. The process of the development of a human physically, physiologically, that is the process of, excuse me, yeah, the process of uh, you know um, how the baby is born, right? From the conception, matlab from the first step, excuse me, yeah, from the first step of
conceiving a baby, uh, from when the baby is there in the womb. Okay, wo when it is a sperm, when is the baby is a sperm, from that to a full baby, the whole process is किसके वजह से होता है? आई मीन व्हाट इज, हाउ डू वी सी इट इन दिस theory? We say that vayu is responsible for that. Okay, given the important role that vata plays, it is perhaps no surprise that when it is retained or blocked in the body, it becomes a major pathogenic influence. ठीक है, अभी आप देखो एवरीथिंग फ्रॉम अपने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हो गया, फिर एक्सपल्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, to your birth, right? Making another human being. Everything, all of this is related to vata. That is why अगर आपके शरीर में वाता का imbalance होता है, तो it becomes a major pathogenic influence. मतलब pathogenic influence, it becomes a problem. It becomes a condition or a illness for you. पैथोजेनिक, हमने कल देखा था डिफरेंट वायरस एंड दिस, हाउ डू यू गेट कोल्ड? कोल्ड नाक से जुड़ा है, एयर, राइट? नाक से आप सांस लेते हो, एंड कोल्ड इज बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया और वायरस, नॉट वायरस बट बैक्टीरिया, राइट? सो पैथोजेंस, रिमेंबर हमने देखा था बैक्टीरिया, फंगस, वायरस को हम पैथोजेंस बोलते हैं. पैथोजेंस, पैथोजेंस आर, पैथोजेंस का अर्थ ये है कि देर आर अदर ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे ये जिसे कहते हैं, वर्म्स नहीं कह सकते, कीड़े मकोड़े नहीं कह सकते, दीज ऑर्गेनिजम्स, वायरस या बैक्टीरिया, बिकॉज ऑफ विच यू कैन फॉल सिक. ह्यूमंस के लिए दैट विच कैन मेक यू फॉल सिक, बीमारी दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पैथोजन. ओके, सो पैथोजेनिक इन्फ्लुएंस. सो अगर वाता में इनबैलेंस होता है, सो इट becomes a pathogenic influence, that is you can fall sick. Okay, next, when vata is disturbed, जब इसमें imbalance होता है, the pervasive nature of akasha, आकाशा, रिमेंबर हमने वो देखा था कोरिलेशन कल, आकाशा and the catabolic activity of vayu represent widespread degenerative changes in the body characterized by lightness, laghu, dryness, ruksha of the tissue, which in turn promotes roughness, khara, and friction, vishada, in the body. राइट, तो जब वाता का इम्बैलेंस होता है, तो दीज आर द सिम्टम्स जिसे हम कहते हैं, वो दिखता है अपने शरीर में. क्या क्या है वो? लाइटनेस, लघु, ड्राइनेस, रुक्षा, रुक्षा इन योर टिश्यू. ओके, टिश्यू, ऑल ऑफ दिस इज टिश्यू. ओके, सो टिश्यू लेवल पर आपका स्किन बहुत ड्राई होगा. प्रमोट्स रफनेस, रफनेस, विषाद, फ्रिक्शन. ठीक है, these are some of the symptoms. These are all I am repeating. You don't need to by heart any of this. This is only for your understanding. Okay, you have, आप जनरली समझ लो कि वाता क्या है, कफ क्या है, पित्त क्या है, तो काफी है. डोंट, दीज आर ऑल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, डोंट इतना ज्यादा सोचो मत कि ये सब मुझे बाय हार्ट होना चाहिए, क्या है, कैसे कोरिलेट करना है, इतना ज्यादा नहीं सोचना है. इट्स ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. नाउ the theory of Ayurveda, pitta का देखेंगे next. Okay, the function of pitta in the body is to provide heat due to predominance of tejas in its composition. Okay, pitta और अग्नि देखा था हमने कल, right? और अग्नि किसके लिए हेल्प होता है? डाइजेशन, पचन के लिए, ये भी हमने कल देखा था, right? Now this notion of cooking the indigest, cooking मतलब यहाँ पर हम खाना बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम पचन की बात कर रहे हैं यहाँ पर. यहाँ पर जस्ट, इट्स जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैंने कुकिंग वर्ड डाला है वहाँ पर. दिस नोशन ऑफ कुकिंग द इंडाइजेस्टेड फूड हाउएवर आल्सो एक्सटेंड्स टू द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म हमने देखा था, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? हम खाना खाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स जिसे कहते हैं, या विटामिन्स, प्रोटीन जो होता है, वो अपने खून में, ब्लड में अब्सॉर्ब होता है, जिसके वजह से हमें वो शुगर बन के अब्सॉर्ब होता है, वो हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है ये ब्लड, और उसके वजह से हमें क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, एनर्जी मिलती है, राइट? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ओके,
पचन शक्ति जिसे हम हिंदी में कहते हैं, राइट? सो मेटाबॉलिज्म, एंड थस pitta is associated with metabolically active organs such as the liver, skin, blood. ठीक है? तो पित्त इन ऑर्गन्स, अपने आपके बॉडी में लिवर हो गया, स्किन हो गया। लिवर, व्हाई इज लिवर इंपॉर्टेंट इन दिस? बिकॉज लिवर इज वेयर फैट, दिस वी हैव फैटी लिवर, इट्स अ वेरी, अभी के सिचुएशन में फैटी लिवर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। ठीक है? बिकॉज वाई? because बाकी conditions आप you can diagnose, fatty liver is one of the leading causes आज के दुनिया में, because of which people are passing away. It cannot be diagnosed, it cannot be found out. एक दिन आप कोई गिर जाता है and उसके बाद you see, and then you see कि fatty liver is one of the reasons. Okay, oil, junk food वगैरह other reasons. So liver also plays a role in your metabolism. Skin, you can see allergic reaction, right? Blood हमने अभी देखा. So all of these organs are related to your pitta dosha. Okay, now the term pitta is derived from the root word tapas, which means to heat or glow. हमने जब तपस डिस्कस किया था योगा, इसमें हमने देखा था वो तेजस जिसके बारे में हमने बात किया था, राइट? सो फायर, वी हैव दैट फायर, नॉट वी डोंट हैव दैट फायर, बट व्हेन वी सॉ, राइट, सुपर हीरोज एंड गॉड्स, जब हम ड्रॉ करते हैं तो वी हैव दैट ऑरा, दैट फायर, दैट तेजस, है ना? तो पित्ता, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू हीट, इट इज रिलेटेड टू फायर, वी टॉक अबाउट दैट वर्ड पित्ता comes from the root tapas, बिकॉज इट मीन्स दैट हीट और ग्लो, राइट? इसके वजह से अग्नि के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, kapha dosha. In many ways kapha is opposite in nature to pitta. pitta is pitta हमने देखा था, it is, even though it has that glow, it is about Agni, it is about Tejas. Kapha, on the other hand, is cooling in nature. It's cool. Okay? In many ways, Kapha is opposite in nature to Pitta, attending to the structural functions of the body, lubrication, moisturizing, nourishing, providing support. Okay? जैसे यहाँ पर it is the opposite, it is about food and it is about metabolism, it is about that energy. The other part is opposite, it is moisturizing, nourishing, support dena. This is the function of kapha, comprising prithvi and apa. Prithvi, earth देखा था हमने, and apa, water. Kapha most strongly relates to the physical structure of the body. Okay, and thus sthira, that is solid, guru, heavy, and sthula, that is gross in nature. Okay, हम देखते हैं तो ये ऑपोजिट है। पित्त इज अग्नि, यू कांट, ग्रोस नहीं है, आप देख नहीं सकते, राइट? कफ, व्हेन यू हैव कोल्ड, यू हैव दैट म्यूकस, राइट? यू कैन सी इट। सो ग्रोस, हेवी, कफ इज हेवी। ओके, इट इज, सॉरी थोड़ा सा ये लगेगा, बट जब को सर्दी आती है तो यू सी दैट इट इज ग्रोस, इट इज हेवी, राइट? On the other hand, fire is not heavy, it is light, it has that flowy movement to it, right? Sthira, it is solid. Fire is wavy, right? Tejas, Agni, that is a little wavy. Kapha is sthira, it is solid. Okay. Now, these greasy and slippery properties, you know how a mucus list, आपको पता है, आपको सर्दी होता है तो आप निकालते हो तो कैसा लगता है, right? That कफ कैसे लगता है? It is greasy, slippery है. Properties of kapha also describe the nature and function of the degenerative organs, the creation of new life, as well as the lactating breast that are nourishing another being. Okay. माँ का दूध, all of this is related to creating new life, sustaining new life. All of this is kapha. Now, the primary qualities of kapha are, हमने देखा, guru, heavy, cold, sita, greasy, snigdha, sthira, it is stable, mrudu, it is softening, and picchala, it is slimy. All of these are qualities of kapha. Again, only for your information. Now, we go to a new topic. It is
related, but it is again a new topic. There is some, it's a concept in Ayurveda. It is related to Dinacharya and Rutucharya. Dina means day, right? Rutu means seasons, right? Charya means what? Routine or habits or um, yeah, routines or habit. So practicing Dinacharya and Rutucharya, it's a concept very important that I think we should in today's world follow. What is it? Dinacharya and Rutucharya. There must be a method by which one can prevent disease besides treating them. Correct? Uh, Imagine you're already living a healthy life. आप already एक स्वस्थ, happy, mentally happy, stable, and physically nourishing, happy life जी रहे हो. Very less possibility of you getting an illness or a disease. Correct? That is better. Yes, देखा जाए तो that is better. Then you getting a disease and then उसके पीछे दौड़ना, डॉक्टर के पास जाना, दवाई खाना, वो imbalance, right? आपके normal life से वो ऐसे straight line से वो ऐसा जाता है, right? So it becomes an imbalance. So imagine you can do that. You can live a good life, right? So there must be method, right, by which you can prevent disease other than treating him. What is that? That is by living a healthy life. And how can you live a healthy life? Ayurvedic medicine maintains an awareness of these preventive factors by examining the dynamic quality of each season. हम बार बार कहते आ रहे हैं, राइट, कि योर इनर एनवायरमेंट, दैट इज आपके शरीर में अंदर क्या चल रहा है मेंटली, एंड शरीर में अंदर क्या चल रहा है, प्लस योर एनवायरमेंट, है ना, बाहर. सो बाहर सीजन, राइट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉन्स्टेंटली, हम स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं. तो डायनामिक क्वालिटी ऑफ ईच सीजन, हर ऋतु में क्या चलता है, क्या हो क्या होता है, क्या होना चाहिए आपको, कैसे हर ऋतु के हिसाब से बदलना चाहिए, अडेप्ट करना चाहिए, वो डिफरिंग इन्फ्लुएंसेस विद इन ईच 24 आवर पीरियड. तो हर ऋतु में क्या क्या होता है, हाउ यू चेंज एज अ ह्यूमन बीइंग, हाउ यू कैन अडेप्ट, हाउ यू कैन लिव अ बेटर लाइफ. These are things that are seen in the Ayurveda and studied deeply, because we saw, right, how there are in countries which extreme climatic situations, हमने कल डिस्कस किया था, उनको they feel depressed in extreme situations. In India today, because of summer, we see that change, हमें खाने का मन नहीं करता है and all of that. That is why, that is because of the changing seasons, climatic changes के बारे में जो हम कहते हैं, right? So there are different dynamic quality for each season. Dynamic मतलब change. Okay. So dynamic quality of each season, हर season का बदलाव. Now this is studied how is that research? According to 24-hour period. Now Dinacharya and Ritucharya are daily. Dina, it happens according to per day, per season. Charya is regimes, habits or change or um, schedule, right, to align dietary and lifestyle pattern with these influences. Dietary, lifestyle, how do you live. Now yeah, apart from being, now दिनचर्या का स्पेसिफिकली देखेंगे. अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ टाइम टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ब्रह्म मुहूर्त, हम देख ब्रह्म मुहूर्त हमें सब पता है, हम सबको पता है, राइट. 3 से 7 बजे का जो टाइम होता है, सुबह समय होता है, सुबह के वक्त हम उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं. उस टाइम पर इट इज सेड दैट इट इज बेस्ट टू स्टडी, अपना साधना करना, ऑल ऑफ दैट. क्योंकि वो टाइम पे बहुत शांति होती है, बहुत सारे लोग, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल वेक अप एट दैट टाइम, यू नो. बाहर एकदम शांत होता है, द वर्ल्ड इज स्लीपिंग स्टिल, सो यू वेक अप, यू फाइंड दैट टाइम फॉर योर सेल्फ टू डू योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग और साधना किसी भी चीज का. इसीलिए बच्चों को हम बोलते हैं कि पढ़ाई वगैरह करना है तो सुबह 4 बजे उठ के करो, हमें भी कहा गया है, राइट. सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हम जो वो टाइम पे करते हैं ज्यादा अब्जॉर्ब होता है. ओके. So, apart from Brahma Muhurtam is also a time when we can take advantage of ascending influence of Vata to cleanse our bodies to the accumulated kapha of sleep.
ओके, तो ये टाइम पे अगर किया जाता है, इट इज बेटर फॉर अस। ठीक है। नाउ, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑफ लेथार्जी। लेथार्जी मतलब लेजीनेस। ओके। फटीग, फटीग मतलब टायर्डनेस। ओके। म्यूकस एक्यूमुलेशन, कफ, शरीर में जो कफ है। लिवर एंड बाउल कंजेशन, आपके लिवर में और पेट में जो इश्यूज है वगैरह। हेडेक, दर्द, सर, सर में दर्द, ओके, माथे में दर्द। एंड अदर सिम्टम्स ऑफ कफ, ये सब जो है, म्यूकस, लेजी फील करना, टायर्डनेस फील होना, सर दर्द वगैरह, पेट में पचन में इशू, ये सब कफ से रिलेटेड है। इंक्रीज आर इजिली बॉट अंडर कंट्रोल बाय वेकिंग अप अर्ली। अगर आपने ये सब किया, यू विल सी अ चेंज इन योर डेली लाइफ, एंड दैट यू कैन सी कैन हैपन इफ यू स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। अगर आप सुबह जल्दी उठो तो आप देखोगे कि ये सब जो इश्यूज है आपके वो सब will be solved. Okay. Simple techniques such as sleeping with one's head in an easterly direction in front of an uncontained window will naturally reorient us to the earth's circadian cycle. तो जस्ट सर्काडियन साइकिल मतलब क्या? जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। सॉरी। हाँ। सो सर्काडियन साइकिल मतलब क्या? आपका हैबिट है ना। हम किसी किसी लोगों को वो रूटीन होता है कि वो रोज सुबह 6 बजे उठते हैं। हाँ। और रात को वो 9 बजे सो जाते हैं। ओके, तो वो एक हैबिट बन जाता है। हाँ। और 12 बजे दोपहर का खाना खा, नाश्ता सुबह 8 बजे खा लेते हैं, दोपहर को 12 बजे, और शाम को समझो 7 बजे, है ना। तो अगर आपने ये प्रैक्टिस, अगर ये एक इंसान का रूटीन है, उन्होंने किया है ये कंटिन्यूअसली फॉर लेट्स से 9 डेज, 9 डेज इज द हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है, 9 दिन लगता है एक हैबिट को परमानेंट बनने के लिए। तो 9 दिन किया, उसके बाद 1 महीना किया, 2 महीना किया, उसके बाद आपका जो शरीर है उसके लिए इस रूटीन में अडेप्ट हो जाता है। ओके, इट लर्न्स कि दिस इज माई रूटीन। इस प्रकार क्या होता है कि इफ यू सी फॉर सच पीपल, बाय एवरी डे, अगर वो रात को 9 बजे सोते हैं, बाय 9, 8:30 आपका शरीर इट स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग टू गो टू बेड। ठीक है, वो रेडी हो जाता है। तो आप देखोगे 8:30 बजे यू स्टार्ट यॉर्निंग, आंख बंद होना शुरू हो जाता है। 9 बजे यू आर रेडी फॉर बेड, क्योंकि वो इंसान के रूटीन में, वो व्यक्ति के रूटीन में वो हैबिट है। ठीक है। वैसे ही 12 बजे अगर अन्न लेते हैं तो 11:30 बजे, 12 बजे तक भूख लगना शुरू हो जाती है। दैट इज कॉल्ड ए सार्काडियन रिदम। ओके, सो योर बॉडी हैज अडेप्टेड टू अ पर्टिकुलर पैटर्न, अ पर्टिकुलर रूटीन। ठीक है। जैसे आपके शरीर में, वैसा हम सबको एक रूटीन होता है, राइट, होपफुली है। सो हम सबको एक रूटीन है, वैसे ही अर्थ, पृथ्वी को भी एक, पृथ्वी का भी एक रूटीन है, राइट। सनराइज ये टाइम पे होता है, सनसेट ये टाइम पे होता है, दीस मेनी आवर्स इन अ डे, दीस मेनी आवर्स इन अ नाइट, है ना। सो अर्थ का भी सर्काडियन रिदम है। तो हाउ कैन वी अलाइन आर रूटीन और आर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू दैट रिदम? ओके, बिकॉज यू सी आर एंसिस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं, वो दे वर वेरी रूटेड टू नेचर, है ना। टुडे वी वर्क इन ऑफिसेस, बंद दरवाजों के अंदर, एसी लगाकर, फैन पंखा लगाकर, लाइट हमने आर्टिफिशियल बनाया है। बट यू सी आर एंसिस्टर्स वर वेरी रूटेड विथ नेचर, है ना। दे वोक अप बिफोर द सन केम अप, दे वेंट टू स्लीप व्हेन द सन वेंट डाउन, व्हेन द सन वेंट डाउन उसके बाद अन्न ग्रहण नहीं करते थे वो, है ना। They used to eat early, go to bed early. They had a very healthy lifestyle. Today we have everything artificial, so we do things according to our time. है ना, अपनी मर्जी के मालिक हैं हम। So what I'm trying to say is we are not rooted with the nature. We have our own routine. That is why we can see also we come up with new problems. This fatty liver and all.
आर एंसेस्टर्स हैव नेवर सीन, बिकॉज उन्होंने ये सेडेटरी लाइफ मतलब एक ही जगह पे बैठना, एक ही जगह से काम करना, बॉडी शरीर ना हिलने की वजह से बहुत शरीर हम अकड़ जाते हैं ना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, ऑल दिस इज वेरी न्यू फॉर अस। आर ओल्ड ग्रैंड मदर्स हु आर 80 एंड इवन 90, दे आर एबल टू डू एवरीथिंग नॉर्मली। हम एक फ्लोर चढ़ते हैं और हमारे हमारा सांस फूलता है। Why? Because our routine has changed, our habits have changed, and we are not rooted with the nature. We are not one with the nature. So, how to do that? Simple thing, one thing we have mentioned here in your dinacharya could be, हम जब सोते हैं तो ईस्ट ईस्ट के साइड पे सर रखना, एंड विंडो वहां अगर होता है एंड इट्स ओपन, देन वी आर मोर रूटेड टू द नेचर। Okay, that is one of the very simple this. How we can align our circadian rhythm with the earth's circadian rhythm. Okay, that can be by keeping our head towards the east and going to sleep. Okay, this one just example. Okay, next. So, Rutucharya, the influence of solar cycle or the time it takes for the earth to complete one orbit around the sun. ओके, सोलर साइकिल हमें पता है, अर्थ, ये सन है, अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व करता है, तो एक साइकिल, एक सर्कल, एक गोल मारना, मीन्स अर्थ गोइंग अराउंड द सन, वन ऑर्बिट, उतना टाइम, दैट इज 24 आवर्स, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पीरियड्स कॉल्ड दक्षिणायना एंड उत्तरायण। Okay, one cycle can be divided into two halves, Dakshinayana and Uttarayana. The human body is composed primarily of Prithvi and Apa, earth and what? Our body is made up of Prithvi and Apa. हमने कल देखा था. As we can see how the quality of this climatic influences. See, thus it Kala vitiates the basic characteristic of the human body, weakening Agni and facilitating the production of Ama. Ama is something that is bad or not good for your body. Okay, um, waste or bad things in your body. Okay, तो you see कि ये जो अर्थ जो गोल घूमता है अराउंड द सन, उसके वजह से हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स होता है, चेंजिंग सीजन्स के वजह से हमारे बॉडी में क्या प्रॉब्लम्स होते हैं या क्या चेंजेस होते हैं। ओके, so you see ki there are different things, and how your agni and everything changes, how your composition in your body changes, body कैसे adapt करता है to the changing seasons, and उसके वजह से आपके शरीर में अम्ल या फिर this residue of bad things that are accumulated in your body, that is how the seasonal changes happen. Okay, now, okay. Now, there are voluminous literature on Advaita Vedanta. So this is a new theory. With this, we finished that previous theory, that is of Dinacharya and Ritucharya. With the Vata, Pitta, Kapha वगैरह हमने डिस्कस किया, पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, उसके बाद anything else we discussed? No, then Tridosha, Triguna, and we came to Dinacharya, Ritucharya. All of this is your one theory. Okay, in Ayurveda. इफ एनीथिंग डिड नॉट, देर आर लॉट ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, आप बस बेसिक समझ लो कि दिनचर्या क्या है, ऋतुचर्या क्या है, और त्रिदोषा क्या है, त्रिगुणा क्या है, और पंचमहाभूत क्या है, ये सब डिटेल मतलब टर्मिनोलॉजी समझ लो। उतना समझ गए तो आप खुद रिलेट कर पाओगे कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, एंड वो थ्योरी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, आपको बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कफ का टाइप क्या है, उसका फॉर्म क्या है, क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी क्या, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप बेसिक समझ लो ये टर्मिनोलॉजीज क्या है, उतना समझ जाओगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये एक दूसरे से कैसे जुड़े। ओके, सो दैट फुल थिंग वॉज योर वन थ्योरी। ऑल राइट, we are going to, I hope it is a little bit clear, at least आप वापस जाके पढ़ो, आप सोचो, आपको समझ में आ जाएगा। Okay, we are going to go to our next
theory, that is the Advaita worldview. This I would suggest कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए. It is a little complicated than the others. Okay, because if you don't understand the terms, if you don't understand the very base of this philosophy, then it becomes tough कि आपने आधा अधूरा समझा है तो आगे का आधा थियोरी समझा, आधा नहीं समझा, स्टार्टिंग का ही नहीं समझा तो बाद में का बीच में से शुरू किया तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी. सो आई सजेस्ट यू पे अटेंशन टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. ओके, नाउ ये मीटिंग एंड होता है तो प्लीज रीजॉइन. वी विल लुक एट दिस थ्योरी टुडे. ओके, राइट. सो देर इज वॉल्यूमिनस लिटरेचर, वॉल्यूमिनस मतलब बहुत सारा लिटरेचर on Advaita Vedanta available at different levels of scholarship, mostly philosophical. Vedanta is a school. Okay, it's a philosophy in itself. Advaita Vedanta is a school within the school, sub branch है उस school का. Okay, so Vedanta is a school, Advaita Vedanta is a sub branch of that school. Okay, so Advaita Vedanta पर बहुत सारा literature है by different scholars. Okay, by मतलब different scholars, and which are mostly philosophy. Advaita Vedanta is a branch of philosophy. Okay, now each scholar has written different text based on this school. There are psychological issues at the base of Advaita and in a significant sense constitute its core. Okay, basically I'm trying to say कि Advaita Vedanta का contribution भी है to understand conditioned illnesses, psychological issues. Okay, now the two topics at the very core of Advaita system are consciousness and self. Our favorite topic, consciousness. What is consciousness? Can one of you answer, Siddesh ji or Nikita ji? Can one of you tell me what is consciousness in one word? Give me एक समान शब्द ही दे दीजिए तो काफी है. No? Okay. So consciousness would be, कॉन्शियसनेस हमने बहुत सारे अलग अलग शब्द हम उपयोग करते हैं कॉन्शियसनेस के लिए. दैट इज योर अनकंडीशन स्टेट, ब्रह्मन, हैप्पीनेस, सच्चिदानंद. ऑल ऑफ दिस इज कॉन्शियसनेस. ओके, सेल्फ, 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 जीवात्मा, सेल्फ, आत्मन, सेल्फ. ओके, these are two topics. Advaita Vedanta mein there are three questions that we ask. What are the three questions? First, who am I? Second, what is this world? Third, what is God? Or who is God? What is God? Not who is God, what is God? So, who am I? What is the nature of the world? What is this world? What is God? These are the three questions we ask. In all the three, the concept of consciousness and self comes. Okay? Chetna, yes, that is self. Okay? जी बिल्कुल, चेतना, yes. Thank you, Nikita ji. So, consciousness can be that. Okay. Now, centrality of consciousness in human condition is the defining characteristic of Indian psychology. Okay. Centrality of consciousness क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि we are again and again and again and again saying कि consciousness remains the same. Even if you die, even if you are born, that साक्षी is always there, है ना? वो साक्षी हमेशा वही है. It's always present, है ना? So even though we are talking about the person, consciousness in the person, consciousness is everywhere. It is like akasha. Okay, भाई आकाश इज एवरीवेयर है ना, स्पेस, जगह इज एवरीवेयर. वैसे ही कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर. इट इज इन मी, इट इज इन यू, इट इज इन दिस ऑब्जेक्ट, इट इज आउटसाइड, इट इज इनसाइड, इट इज एवरीवेयर. कॉन्शियसनेस इज एवर प्रेजेंट. ओके, जैसे ब्रह्मन इज एवर देयर, वैसे ही ये कॉन्शियसनेस इज एवरीवेयर.
वाई? क्योंकि ब्रह्मन एंड कॉन्शियसनेस इज द सेम। ओके, सो सेंट्रलिटी ऑफ कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन, क्योंकि हम यहाँ पर अपने बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं। हम इसीलिए कह रहे हैं कॉन्शियसनेस इन ह्यूमन बीइंग, इन ह्यूमन बीइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। ठीक है, इंडियन साइकोलॉजी में हमारा फेवरेट टॉपिक क्या है? कॉन्शियसनेस। ठीक है, सो दैट इज द सेंट्रल टॉपिक ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। According to Advaita, the person, Jiva, is conceptualized as an individual who thinks, feels and acts. So अद्वैता के हिसाब से एक जीव क्या क्या कर सकता है? थिंग्स, सोच सकता है, फील्स, महसूस कर सकता है, एक्ट्स, कर्म कर सकता है। ठीक है, अद्वैता फिलॉसफी के हिसाब से। अग्रीड? वी ऑल अग्री ऑन दिस? यस। एज सच, जो जीव है, जो इंडिविजुअल है, इज सीन एज अ बीइंग इन पोजेशन ऑफ थ्री फंडामेंटल कैपेसिटीज: कॉग्निशन, इमोशन, एक्शन। कॉग्निशन, सोच सकता है। इमोशन, महसूस कर सकता है, उसके भाव, इमोशंस। ओके, एक्शन, कर्म कर सकता है। ये तीन चीज आर फंडामेंटल टू ईच पर्सन। ओके, हर इंसान, हर व्यक्ति ये तीन चीजों के काबिल है। Understanding the nature of such capacities has been integral to Advaitic perspective. तो इन तीन चीजों पर हम ज्यादा फोकस करते हैं जब इंडियन साइकोलॉजी पर देखते हैं। ओके, अद्वैता को बेस रखकर, आधार रखकर जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, इंडियन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, तो दीज आर थ्री थिंग्स दैट वी स्टडी। व्हाट? थिंकिंग, फीलिंग, एक्शन, कॉग्निशन, इमोशन, एक्शन। Okay. Now, it emphasizes on these three capacity. The Advaitic approach overlaps with a wide range of approaches to मॉडर्न है वो, मॉडर्न लिखा है मैंने, सॉरी, मॉडर्न साइकोलॉजी। ओके, मॉडर्न साइकोलॉजी में भी हम ये तीन चीज ही देखते हैं। करेक्ट? कॉग्निशन, एक इंसान क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, और उस चीज को, या क्या कर्म करता है, ये तीन चीज ही हम मॉडर्न साइकोलॉजी में भी देखते हैं। करेक्ट? तो अद्वैत फिलॉसफी में अगर हमने देखा तो ओवरलैप, बहुत समानता है वेस्टर्न साइकोलॉजी से। ठीक है, नेक्स्ट। सॉरी, मैं बैकवर्ड गई, ट्राइंग टू गो फॉरवर्ड। Advaita's approach to human action favors a voluntarist position that stands in sharp contrast to behavior. बेसिकली एक पर्टिकुलर स्कूल है, बिहेवियरिज्म करके, उसके ऑपोजिट में है। ये आपके लिए लागू नहीं है, आप समझ लो। एक स्कूल है बिहेवियरिज्म करके वेस्टर्न साइकोलॉजी में, उसके कॉन्ट्रास्ट में आता है अद्वैता का अप्रोच। ओके, क्योंकि बिहेवियरिज्म में हम सिर्फ कर्म देखते हैं, एक्शंस देखते हैं, एक इंसान क्या करता है, ना उसके मेंटल स्टेट, जैसे इमोशंस या फिर कॉग्निशन पे हम फोकस नहीं करते। ठीक है, व्हाट अ पर्सन थिंक्स एंड फील्स उस पे फोकस नहीं करते, सिर्फ एक्शन पे फोकस किया जाता है। इसीलिए अद्वैता का ऑपोजिट है बिहेवियरिज्म, क्योंकि अद्वैता में हम तीनों देखते हैं। Advaita has a distinct view of human condition and it suggests a practical way to remove suffering and help attain a highly desirable state of happiness and bliss. ठीक है, मतलब अद्वैता जो है वो आपको बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन देता है। जिस थ्योरी दे के हाँ ऐसा है, आपको ये इसलिए फील हो रहा है, ये है आपका कंडीशन करके छोड़